ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ کسی بھی درد کا نبوی نسخہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد چلیں گے ویڈیو کے ٹاپک پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت یمن بھیجی اور ان میں سے ایک صحابی کو ان کا امیر بنایا جن کی عمر سب سے کم تھی۔ وہ لوگ کئی دن تک وہاں ہی ٹھہرے اور نہ جا سکے۔ اس جماعت کے ایک آدمی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تمہیں کیا ہوا؟ تم ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے امیر کے پاؤں میں تکلیف ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امیر کے پاس تشریف لے گئے اور اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر اس آدمی پر دم کیا جو آپ کو سامنے اسکرین پر دکھائی گئی ہے۔ وہ آدمی اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم ویورز، انم ہوم ریمیڈی چینل میں خوش آمدید۔ ایڑیوں کا درد ایک عام پایا جانے والا مسئلہ بن چکا ہے۔ عموماً ورزش کرنے والے یا زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر یا چل پھر کر اپنا کام کرنے والے ایڑیوں میں درد کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر کی وجہ سے بھی ایڑیوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایڑی کی ہڈی کو پنجے کی ہڈی سے ملانے والے جو عضلات ہوتے ہیں اس میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ پٹھوں کے اس ریشوں سے پاؤں کے خمدار محراب کو بھی سہارا ملتا ہے۔ اگر آپ اپنے پلانٹر فیشیا پر دباؤ بڑھاتے رہیں تو یہ کمزور اور سوزش کا شکار ہو سکتا ہے اور ایسی صورت میں کھڑے ہونے یا چلنے میں ایڑی یا تلوے میں شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ خواتین اس مسئلے کا شکار زیادہ نظر آتی ہیں۔ وہ خواتین جو زیادہ چلنے یا زیادہ دیر کھڑا رہنے والا کام کرتی ہیں۔ اگر کسی خواتین کا وزن بہت زیادہ ہو، اضافی وزن کا شکار ہو یا حاملہ ہو، وہ بھی اس مسئلے سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ اضافی وزن، موٹاپے کی وجہ سے اور مسلسل حرکت کے باعث ایڑیوں میں سوزش اور درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تکلیف ایک یا دونوں پاؤں میں ہو سکتی ہے۔ ایڑیوں میں درد کی وجوہات میں ایک وجہ پلانٹر فیشیائٹس کی تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاؤں کی خمدار کمان کو سہارا دینے والی جھلی پر بہت زور پڑنے لگے۔ اگر یہ دباؤ مسلسل جاری رہتا ہے تو جھلی کی بافتیں کٹنے اور پھٹنے لگتی ہیں۔ اس سے پاؤں میں درد یا ورم کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ یہ شکایت کچھ صورتوں میں زیادہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہو، پاؤں کی خمیدہ کمان نسبتاً اونچی ہو یا تلوے برابر یعنی فلیٹ ہوں۔ آپ کے جوتے آرام دہ نہ ہوں تب بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یا ایڑی کو پنڈلی سے ملانے والا پٹھا یا عضلہ تنا ہو، اکڑا ہوا رہتا ہو یا پنڈلیوں کے پٹھے کھینچے ہوئے رہتے ہوں تب بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں اس کا علاج کیا ہے۔ سبسکرائب کیجئے انم ہوم ریمیڈی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ نسخہ نمبر 1 آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ رات کو سونے سے پہلے نمک اور شہد کو ایک ہی مقدار میں اگر آپ ملا کر اچھی طرح سے مکس کر لیں اور جس جگہ آپ کے درد ہے درد والے حصے پر لگا لیں، اوپر سے آپ کوئی کپڑا باندھ کر جرابیں پہن لیں، اس کو اچھی طرح سے ڈانپ لیں۔ 10 دن میں اگر آپ اس تکلیف کا شکار ہیں تو 10 دن میں ایسا کرنے سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جانتے ہیں نسخہ نمبر 2۔ اسپرین کی 10 گولیاں لیں۔ آپ ان گولیوں کو لے کر اچھی طرح سے پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ اب آپ نے اس پاؤڈر کو 250 ملی لیٹر الکحل میں ملانا ہے۔ الکحل میں ملانے کے بعد آپ نے اسے 2 دن کے لیے رکھ دینا ہے۔ 2 دن کے بعد جب آپ اسے لیں گے تو آپ نے تب اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا۔ ہر رات سونے سے پہلے کپڑے کا ٹکڑا تیار شدہ یہ جو محلول آپ نے بنایا ہے اس میں آپ نے بھگو کر ایڑیوں پر لگانا ہے اور نائلون کے تھیلے سے آپ نے اچھی طرح سے اپنے پاؤں کو ایڑیوں کو باندھ لینا ہے۔ باندھ کر آپ نے جرابیں پہن لینی ہے۔ اس کے بعد صبح اٹھ کر پانی سے اپنے پاؤں کو ایڑی کو اچھی طرح دھو لیں اور پیٹرولیم جیلی جسے وازلین
वैसलीन भी बोलते हैं, वो आप लगा लें। 10 दिनों में इंशाल्लाह आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा। हमारे जिस्म के तमाम अज़ा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और अगर एक जगह दर्द हो तो इससे मुंसलिक असलात भी इससे मुतासिर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाँव में दर्द हो तो ये टांग में भी दर्द महसूस होता है। पाँव में होने वाले दर्द की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द वगैरह। चीनी रवायात के मुताबिक, चाइना स्टडी के मुताबिक, पाँव की सेहत से हमें तमाम जिस्म के सेहत का अहवाल मालूम हो जाता है। आप एक्सरसाइज के ज़रिए भी अपने पाँव की एड़ियों की दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। टेनिस बॉल, आप चाहें तो एक टेनिस बॉल ले लें, इसे लेकर आप हल्के दबाव के साथ पाँव पर फेरें। आपने हल्का हल्का दबाव देना है और पाँव पे नीचे फेरते रहना है। आप टेनिस बॉल ज़मीन पे रखें, उसके ऊपर पाँव रखें और उसे आगे पीछे हल्का हल्का मूव करें और ये अमल बारी बारी आपने दोनों पाँव के लिए दोहराना है। इससे आपको अफाका होगा। नंबर 2, पंजे उठाना। पंजा आपने उठाकर किस तरह एक्सरसाइज करनी है वो नोट करें। अपनी उंगलियों को इस तरह आपने उठाने की कोशिश करनी है कि आपका अंगूठा ज़मीन पर रहे और इस अमल को 2 से 3 बार आप दोहराएं रोज़ाना। अगर आपको मुश्किल महसूस हो तो बाकी उंगलियों को ज़मीन पर रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा आप इप्साम नमक पानी में डालें और इसमें अपने पाँव भिगोकर बैठ जाएं। इस तरीके से आपके पाँव से जहरीले मादे निकल जाएंगे और आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। नेक्स्ट, घास पर चलें। जब भी मौका मिले सुबह फजर की नमाज के बाद सुबह सवेरे उठें, घास पर नंगे पाँव कुछ देर के लिए चलें। इस तरीके से आपको ना सिर्फ सुकून मिलेगा बल्कि आपके पाँव का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अक्सर मर्द ख़वातीन एड़ी के दर्द की शिकायत करते हैं। लोग इसे अक्सर काम की ज़्यादती की वजह से, थकावट या ज़्यादा चलने की वजह समझते हैं, मगर दरअसल ये दर्द हमारी एड़ी में मौजूद एक छोटी हड्डी के बढ़ने की वजह से होता है, जो कि पाँव के अंदरूनी हिस्से में मौजूद होती है। इसे कैल्शियम के नाम से जाना जाता है और इसी हड्डी के बढ़ने की वजह से एड़ी का दर्द हो जाता है। ये दर्द कभी कभार इतना शदीद होता है कि पाँव में सुइयां चुभने की कैफियत हो जाती है। इस हड्डी के बढ़ने का अंदाज़ा सिर्फ एक्सरे की मदद से लगाया जा सकता है। अगर आपको भी एड़ी के दर्द की शिकायत है तो आप भी एक बार एक्सरा करवा के अपने शक को दूर कर लें, या कहीं दर्द की वजह हड्डी का बढ़ना तो नहीं। इस हवाले से भी आपके साथ नुस्खे शेयर करती चलूँ। सेब का सिरका। सेब का सिरका बहुत से मसाइल का बेहतरीन हल है। ये न सिर्फ कैल्शियम की ज़्यादती को कम करने में मददगार साबित होता है बल्कि दर्द से निजात और सूजन को भी ख़त्म कर देता है। आपने करना क्या है, एक तौलिए का हिस्सा लीजिए जो आपके पाँव के नाप का हो और इसे सेब के सिरके में भिगोएं। इस तौलिए के हिस्से को अपने जूते में डालें और जूता पहन लें। अपने जूते के ऊपर इस तौलिए के हिस्से को, जो आपने अपने पाँव के मुताबिक काटा, जिसे आपने सेब के सिरके में भिगोया, उसे जूते के ऊपर रखें और जूता पहन लें। यकीन दहानी कर लें कि तौलिया पूरा दिन गीला रहे। खुश्क हो जाए तो उसे फिर से तर कर लें। इस अमल को 1 हफ्ते तक जारी रखें। इसके अलावा आप सेब के सिरके को 2 अलग तरीक़ों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आधा कप आप सेब का सिरका गर्म करें। एक टब में आप गर्म पानी लें और इसमें सेब का सिरका डाल दें और इस पानी में आपने 5 से 10 मिनट के लिए पाँव को भिगो के रखना है। इस अमल को 1 या 2 हफ्ते आप रोज़ाना 2 बार करें। इसके अलावा आप सेब के सिरके को शहद और गर्म पानी के साथ मिलाकर 1 या 2 हफ्ते तक रोज़ाना 2 गिलास पीते रहें, तो भी आपके दर्द में खातिर ख़वाह कमी महसूस होगी। नेक्स्ट, बर्फ़ का इस्तेमाल भी एड़ी के दर्द में कमी लाने के लिए बेहद मददगार साबित होता है। बर्फ़ के इस्तेमाल से सूजन और दर्द में कमी आती है। इसके अलावा हमारे मसल्स को सुकून मिलता है। पानी की बोतल को अच्छी तरह जमा लें और इस बोतल को 10 से 15 मिनट पाँव पर रखें। इस अमल को रोज़ाना करें। जब जब आपको पाँव में दर्द महसूस हो, ख्याल रहे कि कभी भी आप बर्फ़ को डायरेक्ट अपनी जिल्द पर ना लगाएं। इसे किसी चीज़ में लपेट कर या बोतल में या किसी कपड़े में लपेट कर लगाएं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी एड़ी में दर्द में कमी लाता है। बेकिंग सोडा में मौजूद क्रिस्टल्स एड़ी में बढ़ती कैल्शियम की ज़्यादती को कम करता है। इसके अलावा ये सूजन और दर्द में भी कमी लाता है। और आपने करना क्या है, आधी चाय के चम्मच बेकिंग सोडा को लेकर पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें। इतना कि इसका आपने इतना पानी ऐड करना है कि इसका पेस्ट बन जाए। अब आपने इस पेस्ट को एड़ी पर लगाना है। इस अमल को कुछ दिन तक आप रोज़ाना दिन में 2 बार करें। खोपड़े का तेल भी एड़ी के दर्द के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। खोपड़े के तेल में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसके मसाज से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है।
खोपड़े के तेल को गर्म करके अगर एड़ी पर या किसी भी जगह जहां दर्द हो लगाया जाए तो फौरन आराम मिलता है। इसके मसाज के बाद तेल को कुछ घंटों तक आप जिल्द पर लगा रहने दें और कोशिश करें कि तेल का मसाज रात को सोने से पहले करें ताकि सुबह होने वाली तकलीफ से महफूज रहा जा सके। नेक्स्ट है अलसी के बीज का तेल। अलसी के बीज का तेल भी एड़ी के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद अल्फा लिनोलिक एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ही एक किस्म मौजूद होती है जो दर्द और सूजन में कमी लाता है। 1/4 आप कप अलसी के बीज के तेल का गर्म करें और एक कपड़े को इसमें भिगोकर एड़ी पर रखें। इसके बाद इस पर प्लास्टिक की थैली बांध लें। अब आप इस पर कुछ घंटों तक गर्म टकोर करते रहें। इस दौरान कोशिश करें कि हिलने जुलने का कोई काम ना करें। इस अमल को रोज़ाना 1 दफ़ा ज़रूर करें। इस वक्त तक करें जब तक मुकम्मल तौर पे दर्द से निजात हासिल ना कर लें। ये सब रेमेडीज़ बहुत बेस्ट आजमूदा और बगैर किसी नुकसान के हैं। आपको इसमें जो बेस्ट लगे आप वो आजमाएं, जिससे आपको आफाका हो। आप उस रेमेडी को जारी रखें, इंशाल्लाह आपके दर्द में आपको राहत मिलेगी।